चलो सर अभी बोलो ना क्या बोल रहे हैं संभालिए साइड से धरा मिला 200 का संभालिए और मुश्किल से रखता है बिल्कुल बंद भी हो जाता है ये 200 ये 200 ले अरे इसका मैं एक नहीं करूंगा तो बेचारा आजादी के दिन पे आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है चलो See, last class we started with admission and retirement combination. कोई आ रहा है और बस देख लो आजू बाजू कोई बाकी है आचार्य अच्छा वापस नहीं आ रहा वो पहले तो लेक्चर में नहीं था लॉ में आया था इको में ये 12 को पीछे कितना है चलो आर्यन आचार्य मंटू 3 और 3 है खुशी 4 और 2 है आशना नहीं है ये और एक है रोहित एडिया नहीं है हाँ हो गया कुछ रोहित एडिया आगे गई क्या आई नहीं Alright now, see last class we started with admission plus retirement combined sums. Okay, same type we are going to continue now. So these are very hit problems. Today, whatever problems we are going to do, okay, they are basically sum number. एक है सम नंबर 13 है एक है 14 फिर 30 हुआ 14 हुआ फिर 23 हुआ ओके ये बहुत हिट प्रॉब्लम्स है सिमिलर टाइप के हैं और बहुत बार आ चुके हैं पेपर्स में पता नहीं सेम सिमिलर टाइप है बच्चे आस्क अ लॉट एंड इट्स all not that difficult, but you need to do it once at least before attempting. So 13 बोला मैंने और कौन सा बोला 13 बोला फिर 14 बोला और फिर 23 बोला मैंने आपको ओके so let's start with this one sum number 14 see sum number 14 look at sum number 14 star mark करना it's a module sum all three are module sums okay all three are module sums sum number 14 all of you take a look at sum number 14 sum देखो देखो क्या दिया है 14th में Masons X is a partnership formed with partners A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 3:2:5. The balance sheet is given to you. So, who are the whole partners over here? A, B, C are the whole partners, right? Now read further what are they given.
it was mutually agreed that B will retire from the partnership, and in his place, D will be admitted as a partner with effect from 1st July 2015. हमने एक सम सिमिलर किया था, दो सम इनफैक्ट किया था लास्ट क्लास, जहाँ पे बाप गया था, बेटा आया था, याद है? KLM उसके जगह पे आ गया था. So it was mutually agreed that B retires and D was admitted in his place, right? But उधर क्या था? Suppose ratio was 5:3:2. तो जो 3 वाला पार्टनर गया तो 3 वाले पार्टनर में ही आ गया. TSR चेंज नहीं हुआ था. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे पढ़ो. D गया, D आया, बराबर है? B for Bombay गया, D for Delhi आया. Goodwill of the firm is to be valued at 2 lakhs. Due to the firm's locational advantage, but the same will not appear as an asset of the reconstituted firm. हम लोग वैसे भी directly capital में adjust कर देते हैं. 2 लाख रुपया नहीं goodwill है. Buildings and plant and machinery are to be valued at 90% and 85% of their respective balance sheet values. Investments are to be taken over by the retiring partner at 25,000, that is asset taken over. Trade receivables are considered good only up to 90% of the balance sheet figure. The balance are to be considered as bad. Bad means this is not RDD, this is bad. This is gone, bad debts. Okay, debtors reduced. The reconstituted from the total capital will be 3 lakhs, which will be contributed by A, C, and D in the new profit sharing ratio, which is 3:4:3. So new PSR is different, right? New PSR is 3:4:3. The amount due to the retiring partner shall be transferred to his loan. The very first thing in this kind of problems, again, what is important is goodwill. Let's crack goodwill first of all. नहीं सब कुछ बनाना है. अरे सर नहीं दिया है. क्या नहीं लिखा है? कुछ लिखा ही नहीं है, क्या बनाना है? प्रिपेयर्ड रिवाइल अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट, लेकिन बैलेंस शीट बना हुई है. अरे बहुत खतरनाक है. बना लो बैलेंस शीट, बना लो. भले ही पूछा है नहीं पूछा है, कर लो फॉर प्रैक्टिस. फिर आगे नहीं आया क्वेश्चन में तो पेपर में तो ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मेक द नोट फॉर व्हाट. तो OR देखो कितना दिया है. OR is I think 3:2:5. Can you all see that? 3:2:5. This is between A, B, C, and can I say D is 0 in the OR? इधर रेशियो ही मैटर करता है, बहुत ध्यान से करना रेशियो. NR क्या है आपका? आई थिंक NR है 3:4:3 between A, C and D. 3:4:3. तो ये 0 हो गया. Is that right? बराबर है? मिला? So 3:2:5:0 and 3:0:4:3. Sorted? बराबर? Now OR दिया है, NR दिया है. First of all सीधा OR minus NR. So OR minus NR करेंगे for A, B, C and D. चारों का OR minus NR. ये रेशियो क्लियर है सबको? 3:2:5:0, 3:0:4:3 समझ में आया? ये आड़ा टेढ़ा किधर प्लेसमेंट कर दिया तो वाट लग जाएगा. ओके, तो पहला वाले का है 3/10 minus 3/10 आई थिंक, राइट? तो 0 हो जाता है इसका. दूसरे वाले का है 2/5 minus 0 which is 2/5 which is I think 4/10 I think. 10 में रख रहा हूँ क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 10 है. समझा? दूसरे का 2/10 ही है ये, तो 2/10 ही आएगा. तीसरे का है 5/10 minus 4/10 which is 1/10 I think. And चौथे का है 0 minus 3/10 which is minus 3/10. So can I say this partner is gaining, D is gaining, B and C are sacrificing. बराबर है? इसमें सारा कुछ मसाला आ गया. एडमिशन, रिटायरमेंट, गेन, सैक्रिफाइस, इंटरनल PSR भी अगर कुछ चेंज हो रहा है सब कुछ आ गया. नो वरीज. Multiplied with what? Total goodwill. You know total goodwill. 2 lakhs is your total goodwill in all the 4 cases. So this is I think 40,000. Correct? This is 20,000 and this is 60,000. So who shall give goodwill to whom? B to B to C. Is that right? D to B to C. Mila? D to B to C. That's your
Goodwill. Understood? B to B to C. Gaining to sacrificing sorted है. Okay. Let's try to crack it. सबसे पहला start with reval account. क्या कर रहे हो भाई? हाँ हाँ मतलब अकाउंट बना स्टेप्स तो वही फॉलो करो. अकाउंट बना रहा हूँ अकाउंट. बैंक कैश का बैलेंस ही नहीं दिया है, ओडी दिया है. अभी आपके पास दो तरीके हैं, या तो ओडी को बैलेंस में डालो या तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी बना लो. 12th में मैंने आपको बोला था, क्या बोला था याद है? इधर आप बैलेंस लिख सकते हैं. इधर थर्ड पार्टी नहीं पता तो चलेगा, सीए में यू कैन राइट इट एज अ बैलेंस. ओके, सो नॉट एन इश्यू. सो बैंक अकाउंट में सीए एग्जाम्स में आप बाय बैलेंस लिख सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. 12th में याद रखना, ये मत करना. 12th में सेपरेट. ओके, सेपरेट लायबिलिटी. बैंक बैलेंस 0 तो नील कर देना. इधर आप लिख सकते हो, इधर बैंक में बाय बैलेंस बीडी इज 44,000. ओके, these are partners capital. I think 4 कॉलम्स बनेंगे. करेक्ट. The 4 columns A, B, C and D. And balance sheet बड़ी पूछा नहीं है, लेकिन make it. Problem is important. Okay, square. Balance sheet as of the 1st July, I think 2015. Let's begin. Tell me, first step क्या है आपका? Balance. Start with first step, balance, opening balance. That is required. Opening balance of capital is by balance BD. किसका मिलेगा? I think A, B और C का 1,476 and 1,40,000. D का कोई ओपनिंग बैलेंस आने वाला नहीं है. ओके, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट कर रहे हैं, स्टेप्स वही रहने वाले. ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट कंबाइंड है, राइट? हेलो, हो गया? बैलेंस लिखा. कम ऑन. बैंक में कोई बैलेंस है तो मैंने ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, क्योंकि बैंक बैलेंस मिलता है यहाँ पे. तो हियर यू कैन मेंशन इट एज एन ओडी, सेम अकाउंट, नॉट एन इश्यू. सेकेंड स्टेप, रिजर्व्स है, लॉसेस नहीं है. होते तो किसको जाते? सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स, एबीसी. So here we are looking at a combined problem, admission plus retirement. Reserves तो तीनों को ही जा रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को. नेक्स्ट इज कैपिटल. अब चेक करो डी का कोई कैपिटल दिया है क्या वहां पे? यानी कैपिटल इज गिवन ऑफ डी. टोटल कैपिटल दिया है पीसीए के वक्त. तो आई थिंक लास्ट में मिलेगा डी का कैपिटल. फिलहाल छोड़ देते हैं. ओके, डी का कैपिटल अभी तो डायरेक्टली नहीं दिया, लास्ट में पीसीए करते हैं अपने आप मिल जाएगा. ओके, तो इग्नोर कैपिटल, बाद में करते हैं. गुडविल पे जाते हैं. गुडविल की एंट्री रेडी है. डी टू बी टू सी. सो डी कैप में आएगा 2 बी कैप एंड 2 सी कैप. डी कैप में आई थिंक आना चाहिए 2 बी कैप 40,000 एंड 2 सी कैप 20,000. एंड बी सी में आएगा बाय डी कैप. By D cap, this is 40 and this is 20. बराबर है? D to B to C. Is that right? Check. D to B to C, that is 40, 20 and 60. मिला? देखो, गुडविल भी हो गया. मतलब who is giving goodwill to whom? D is giving it to B and C. So D का कैपिटल घट गया, obviously the incoming partner, इसका कैपिटल घट चुका है. बट ये लाया कितना कैपिटल अपने को मालूम है कि नहीं? मालूम है बेटा? फिलहाल तो नहीं मालूम है कितना लाया, मिलेगा, लास्ट में मिलेगा. बट हमने 60 हड़प लिया है, इसने 60 हड़प लिया गुडविल का. ये समझ में आया? चलिए, गुडविल के बाद तो रिवाल है. रिवाल बता दीजिए फटाफट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट देखो. आई थिंक
भाई बैग रख के गया था तू? घर पे गया, इधर इधर है बैग, पीछे संभाल के। 200 फाइनल सर। अभी तो कनाडा जैसा कपड़ा था। चलो कनाडा चलो बताओ, थोड़ा कपड़ा एकदम कनाडा जैसा पहन लिया। कनाडा मामा ने चलो buildings and plant and machinery are to be valued at 90 and 85%. To be valued, याद है मैंने 12 में बोला था, to be. Future दिया तो directly, past दिया तो cross multiply. यहाँ पे कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो कितना आएगा, बिल्डिंग घटाना है, बराबर है 2 बिल्डिंग 10% घटाओ कितना आएगा 20,000 बिल्डिंग का नहीं प्लांट 57 15% बराबर है। Investments are taken over at 25. Value of investment was I think 22. तो buy investment बढ़ के हो जाएगा 25 3000 से बढ़ेगा और फिर take over हुआ है। What is the entry for asset taken over? Partner capital to asset. So who is taking over investments? Retiring कौन है? B. तो B कैप में 2 investments 25,000 समझा? Investments are taken over और क्या दिया revaluation में? Trade receivables are considered good at 90%. So I think the rest are bad, right? So do we write RDD or do we write trade receivables? Trade receivables बराबर है 1,39,000 का 10% is what? 13,900. Is that correct? बराबर है मिला समझा? चलो ये रिवैल का पार्ट हो गया। फाइंड आउट योर प्रॉफिट और लॉस टोटल 90,900 एंड 87,900 का आपका लॉस है। किसको जाएगा, 2 को कि 3 को? 3 कौन, A, B एंड C। रेशियो था आपका आई थिंक 3:5 करो 26 and 580 90। बाय पार्टनर कैपिटल का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट टू रिवैल 26,370 17,580 and 4,3,950 मिला 4,3,950 check got it। So reval also done। First step was balance, then reserves, then capital। बाकी अपना नया पार्टनर अभी तक कैपिटल नहीं किया हमने। गुडविल हो गया, रिवाल हो गया। अब जाते हैं पीसीए पे। पीसीए के लिए मुझे बताओ ये एडमिशन का पीसीए कि रिटायरमेंट का पीसीए? एडमिशन का पीसीए तो किसी का तो बेस होना चाहिए कैपिटल का। तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे? डी है। डी का बेस होना चाहिए, लेकिन बेस तो दिया नहीं है। और कुछ हिंट दिया, क्या दिया? टोटल कैपिटल दिया हुआ है। तो लेट्स ट्राई टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। सो क्या दिया, आगे बढ़ो। द टोटल कैपिटल पीसीए के लिए, द टोटल कैपिटल henceforth will be how much? 3 lakhs? And this 3 lakhs will be divided between, I think, A, 3 for 3. C and D. This will be divided between A, C and D. In which ratio? 3:4:3. Right? So I think 90,000, 1,20,000 and 90,000. Am I right? 90, 120 and 90. तो आज के बाद इनका कैपिटल होना चाहिए 90, 120, 90। किसका?
ए सी डी का, नॉर्मली डी का बेस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर करते हैं, राइट? जो बाप बेटे वाला समय था वैसे किया था हमने, वो लाया था, उसमें अपने को पता था वो कितना ला रहा है। जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका आधा वो ला रहा था, अगर याद होगा तो रिटायरिंग को आधा पे किया था, बाकी आधा हमने न्यू पार्टनर का कैपिटल लिया था, फिर पीसीए के लिए उसको बेस लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, रिमेंबर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको दूसरा इंट दिया, टोटल कैपिटल दे दिया, ठीक है। तो वेयर डू वी राइट दिस कैपिटल? बैलेंस में लिख देते हो। आज के बाद इनके कैपिटल होने चाहिए 90 फॉर ए, ध्यान से कॉलम देखना, सी का है 1,20,000 और डी का है 90, बराबर है। अब यहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज यू हैव टू सी, डी का कैपिटल देखो, डी का कैपिटल इतना होना चाहिए 90 आज के बाद, ये पीसीए का कैपिटल है और उससे ऑलरेडी 60 हड़प लिया है, तो वो लाया कितना होगा? तो यहां से मिलेगा अपने को डी का कैपिटल, कैसे? 90 प्लस 60, इधर डिफरेंस आएगा, कितना आएगा? 1,50,000। अब ऐसे भी बाय बैंक डू बैंक करते हो, ऐसे भी कर सकते हो, सीधा ही मिल जाएगा बाय बैंक डू बैंक, पर लॉजिकली सोचने का कि 1,50,000 वो लाया, वो 1,50,000 लाया, उसमें से 60 हड़प लिया फॉर गुडविल, तो कैपिटल कितना हुआ? 90। दैट्स हाउ यू गेट इट, सिंपल। जो बाप बेटे वाला सम था ना, उसमें अपने को बेस कैपिटल पता था, सॉरी बाप बेटे वाला सम था, उसमें टोटल कैपिटल पता था, और रिटायरिंग का आधा हमने टोटल दिया था उसको, टोटल में से गुडविल काटा तो बेस कैपिटल मिला था। यहाँ पे बेस कैपिटल पता है तो यहाँ पे ऐड करके टोटल कैपिटल मिल जाएगा। टोटल कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल प्लस गुडविल। डिड यू गेट इट? नहीं, बाप बेटे वाले सब में टोटल कैपिटल मालूम था कितना था, रिटायरिंग पार्टनर का कन्वर्ट किया हुआ, उसमें से गुडविल काटा तो बेस मिला। यहाँ पे बेस पता है और गुडविल पता है, तो यहाँ से टोटल मिल जाएगा, समझा? दोनों में से कुछ ना कुछ दिया रहेगा, आपको सिर्फ थोड़ा पजल के जैसा हिंट क्रैक करना। तो सामने ही है 90 और 60 कितना होता है? 1,50,000 होता है, मिला। तो 1,50,000 ये लाया, इसका एंट्री क्या होगा? बाय बैंक 1,50,000। ये बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैंक में आएगा 2D कैपिटल 1,50,000, मतलब प्लेट में सर्व करके नहीं दिया कि भैया डी 1,50,000 लाया, आपने ढूंढ लिया डी टोटल कितना लाया? 1,50,000। सीधे सोचोगे तो 1,50,000 लाया, 1,50,000 में से 60 हड़पा, 90 बैलेंस, दैट इज यूज्ड फॉर पीसीए। हम उल्टे गए, पीसीए से टोटल कैपिटल ढूंढा, समझ में आया? दिस वाज द हिंट, दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। टोटल कैपिटल कैसे आया समझा? सिंपल, बेस कैपिटल कहां से मिला? बेस कैपिटल ये रहा, पीसीए। पीसीए में हमेशा याद रखना कौन सा कैपिटल मिलता है? बेस कैपिटल। डज दिस हैव गुडविल? नो, पीसीए कैपिटल नेवर हैज गुडविल। इज इट क्लियर? बस अभी बाकी दोनों का कर लो। ये तो बी को क्या करना है? लोन है कि क्या है? बी का लोन है, तो बी का लोन कर लो। कितना आ रहा है? बी लोन 73,420 is B's loan, right? Hello, 73,420 is B's loan। और इनका करो बंद करके पीसीए कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 2 में बाय में टोटल एक ए का टोटल 116,370 इसका, हाँ इसका 950, 116,370, इसका है 116,000 एंड इसका है 163,950। तो आई थिंक इधर ही आ रहा है बाय बैंक दोनों का। बाय बैंक में कितना आ रहा है? 12,370 एंड 3950। प्लीज चेक, 12,370 एंड 3950 मिला, चेक कर लो। चेक करो 12,370 एंड 3950 बाय बैंक। करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैंक में आ जाएगा 2 ए कैपिटल, दैट इज 12370। ये क्या किया समझा? लास्ट वाला पार्ट, ये क्या किया? बाय बैंक। व्हाट इज दैट?
हेलो कैपिटल पीसीए बनाने के लिए इतना घर से लाया ना, बाय बैंक टू बैंक करते हो, वही किया। एक एक्स्ट्रा चीज की मैंने खाली, वो डी का बाय बैंक लिखा। व्हाट इज दिस डी का बाय बैंक? इज कैपिटल इंक्रीज। सर वो एक एंट्री में तीनों लिख सकते हो, चलेगा। मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि पता चल जाए डी का कैपिटल और ये पीसीए का, इसके लिए किया। एक ही लाइन में भी लिख सकते हो बाय बैंक, तो भी चलेगा। बस कर लो बैंक का बैलेंस। 122,320 एंड मेक द बैलेंस शीट। किसकी बनेगी अभी बैलेंस शीट? तो सिर्फ ACD, A cap, C cap, D cap. This is 90,000, 1,20,000 and 90. क्या 3 लाख आ रहा है? बराबर है। ये बोलते जाओ कितना लिखा है assets? लिखो सर। बिल्डिंग, लैंड सेम है। 1 लाख, बिल्डिंग 1 लाख 1,80,000। प्लांट एंड मशीनरी 3,23,000, 3,23,000. Then ट्रेड रिसीवेबल trade receivables 125,100, 125,100. इन्वेंटरीज 1,16,000 1,16,000. और बैंक 122,320, बैंक 122,320. इधर लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन 4 लाख और कुछ और ट्रेड पेमेंट ट्रेड पेबल 193, दैट्स इट. Tallies 966,420. 966,420. Got the sum? मेन चीज था डी का कैपिटल, वो गया दिमाग में? हेलो गॉट मिला? क्लियर है? ओके अभी look at sum number 13. 13 sum is also somewhat similar. ध्यान से देखना, मिला ये वाला हो रहा है टैली 966,420 गाड़ी। अभी लुक एट सम नंबर 13, ध्यान से पढ़िए सम नंबर 13। वापस ABC are the old partners, D is the new partner. You see the balance sheet. ABC are sharing profits in the ratio of 10:64. What is 10:64? 532 OR. 10:64 is 532, right? Yes. इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा इधर। हेलो, the new balance sheet there will be no investments. Why? Taken over. Gone. So yeah, ABC are old partners. 532 मिला. It was mutually agreed that D will retire from the partnership and in his place D will be admitted as a partner. Same था? D गया, D आया 30. ऊपर ही है। D गया, D आया, मिला? Similar सा दिख रहा है? Goodwill is to be valued at 1 lakh. Same should not appear in the book. Same statement है अभी जो किया. हेलो मिला क्या? Goodwill should not appear in the books. Then बाकी सब रिवाल है. लेकिन रिवाल में देखो provision of 20% to be made on trade receivables for doubtful debts. वो क्या है? RD. यहाँ पे trade receivable मत लिखना, यहाँ पे लिखना RD. In the reconstituted from the total capital will be 2 lakhs contributed by A, C and D in the new profit sharing ratio which is 2:1. So what's your new PSR? 2:1 मिला? 2:1 मिला? Hello. The surplus funds, if any, will be used for repaying bank overdraft. The surplus funds, if any, will be used for repaying bank overdraft का मतलब आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा फंड्स बच गए, आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा फंड्स बच गए तो क्या रीपे करना है? बैंक ओडी। तो ये स्टेटमेंट है ना इररिलेवेंट है, क्योंकि ये बैंक है और
ओडी है, इसमें कोई नॉर्मल बैलेंस तो है नहीं, तो ओडी में लिख दिया बाय बैलेंस। तो आपने क्या किया, ये जब बैलेंस निकाला तब ऑलरेडी ओडी ऑटोमेटिकली पे हो चुका है क्योंकि नेगेटिव से बैलेंस पॉजिटिव आ गया। इनफैक्ट ये सब में भी मैंने ओडी रिपे कर दिया क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। हाँ, अगर बैंक अकाउंट अलग होता, ओडी अलग होता तो हम सेपरेट एंट्री मारते, क्या आते, बैंक ओडी टू बैंक, creditors to bank, BP to bank, bank OD to bank, you pay off a liability, right? Loan to bank. तो फिर अलग से आता बैंक में बाय बैंक OD और फिर गायब हो जाता बैलेंस शीट से। बट यहाँ पे तो एक ही अकाउंट है, तो इफ यू आर राइटिंग बाय बैलेंस BD तो अलग से रीपे करने की जरूरत नहीं है, ये आ गया, इसमें रीपेमेंट हो गया। Did you get the point? सम के एंड में भी अगर क्रेडिट बैलेंस सबके एंड में भी क्रेडिट बैलेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना पैसा होना ही चाहिए आपके पास, पैसा ही नहीं तो कैसे करोगे, उतना तो होगा ही। सुना क्या बोला, अगर दो सेपरेट अकाउंट है बैंक और बैंक ओडी तो अलग से एंट्री आएगा, बैंक ओडी टू बैंक, सुना, बैंक ओडी गायब और इधर बाय बैंक ओडी। अगर सेपरेट अकाउंट्स हैं तो यहाँ पे कोई सेपरेट अकाउंट नहीं है, एक ही बैंक, इसी ने ओडी का बैलेंस लिख दिया, तो ये नलिफाई हो गया, ऑटोमेटिकली रीपे। इनफैक्ट इन दिस प्रॉब्लम आल्सो आई रीपेड द ओडी। हेलो, यस वो रीपेमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को एक ही अकाउंट है and the amount due to retiring party is transferred to his loan, very much similar to this sum. What you have to try this sum on your own, I'll also solve it but do not copy, come on, try करो ये sum, start with goodwill, ORNR goodwill crack करो पहले, पूरा सब सिमिलर है, इसमें भी न्यू पार्टनर कैपिटल नहीं दिया है, come on, try this. पहले गुडविल का नोट कर लो, मेक द नोट फॉर गुडविल। ये हो गया सबका, बैलेंस शीट हो गया, 4 पार्टनर्स है, $27 will be a holiday, okay? 27. It's Ganesh Chaturthi and Samvatsari. 27. It's a Friday. मैं तुमको बोल रहा है। सर टेस्ट अब एक्स्ट्रा लेक्चर में लेना है। संडे का टेस्ट वो बात नहीं। ये संडे नहीं और गणपति में थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर होने वाला है आपका। ठीक है? मेरा नहीं, सबका होने वाला है। मेरे को बंदूक में सबका होने वाला है। कॉलेज में छुट्टी है आपके। कॉलेज है सर। अच्छा, वन मोर थिंग, वो देखते हैं चलो गणपति का अपना संवत्सर क्या पर्यूषण में, आर यू गाइस रेडी टू कम इन द आफ्टरनून? If everyone is ready to come in the afternoon, we can keep it in the afternoon. नहीं सर But then if you want to go to college, तो फिर शाम को करना पड़ेगा. कैसे होगा जाने के लिए You guys decide among yourself and let us know. Okay, we can't go with the college का clashing timings. If you want to go to college, let us know. तो फिर रात शाम को रहेगा. सर सिर्फ एक लेक्चर है लेक्चर तो एक ही रहेगा, एक्स्ट्रा नहीं रहेगा. पर्यूषण में एक ही रहेगा. खाली वो प्रतिक्रमण सब करने का रहता है, इसके लिए आप तो मेरे को नहीं है, मैं आ सकता है शाम को, आप लोगों का है. इवनिंग ऑल्सो आई कैन गो इन द आफ्टरनून. चलो, सो चलेगा सबको आफ्टरनून 20 to 27. जाऊ છે कॉलेज तो क्यों बोली कॉलेज जाऊ हશે तो પછી લેટર લો બેટી ભાઈ કાઈ નથી इसलिए नाम ही बोला तो आफ्टरनून चलेगा ना 20 से 27. मैं बात करके देखता हूँ सबका कर लेते हैं. 6 बजे तक आप फ्री हो. चलो ट्राई करो ये सब. हाँ हाँ एक ही हो, ये लेक्चर एक ही हो. देखते हैं कैसा बनता है.
गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? दो पार्टनर दो को दे रहे CD to AB. आधा आधा करेगा बना रहा हूँ OR देखो ध्यान से देखो बोर्ड पे 1 मिनट OR दिया आपने को 10 6 4 राइट so that is 5 into 3 is to 2 and NR क्या दिया 2 to 1 दिया between ACD right हेलो ये एक सॉर्टेड है प्लेसमेंट बराबर रखना अभी क्या करना है GR या SR that is OR minus NR A B C and D let's calculate A का क्या आएगा 5 by 10 minus 2 by 5 I think right LCM is 10 this is 5 minus 4 1 by 10 is that correct B का क्या आएगा 3 by 10 minus 0 which is 3 by 10 तीसरे का क्या आएगा 2 by 10 silence minus 2 by 5 LCM is 10 2 minus 4 minus 2 by 10 and the last partner is 0 minus 1 by 5 0 minus 1 by 5 is minus 1 by 5 what is minus 1 by 5 minus 2 by 10 minus 2 by 10 right so abhi two partners are sacrificing 2 are sacrificing and 2 are gaining right you check here C and D both are gaining and A and B both are sacrificing exactly so who will give goodwill to whom these two will give it to these two C D to A to B तो एंट्री देखना इन सबको पहले मल्टीप्लाई करो टोटल गुडविल कितना है 1 लाख तो सबको इनटू 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख am I right everything into 1 lakh 1 lakh 1 lakh 1 lakh so I think this is 10,000 this is 30,000 this is 20,000 and this is also 20,000 am I right so who will give goodwill to whom D C to A to B D gets a debit of I think 20,000 C gets a debit of 20 A gets a credit of 10,000 and B gets a credit of 30,000 okay now गम्मत ऐसा है कि इसको स्प्लिट कैसे करें क्योंकि यहाँ पे लोचा हो रहा है यहाँ पे एडमिशन रिटायरमेंट तो है वन इज गेटिंग एडमिटेड वन इज गेटिंग रिटायर्ड बट इंटरनली भी PSR चेंज हो रहा है यू चेक नॉर्मली ओनली द एडमिटिंग पार्टनर गेन्स यहाँ पे एडमिटिंग पार्टनर के साथ C भी गेन कर रहा है दो जन गेन कर रहे हैं इंटरनली भी PSR चेंज हो रहा है इट्स गेनिंग टू सैक्रिफाइस नॉर्मली ये गेन करता है पिछले सब में खाली D to A to B था अगर ध्यान देगा होगा है ना यहाँ पे दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं D और C और दो जन सैक्रिफाइस कर रहे हैं A एंड B जो जा रहा है वो तो सैक्रिफाइस करेगा B तो कर ही रहा है A भी सैक्रिफाइस करेगा अभी ये है एंट्री D C to A to B इसका स्प्लिट कैसे करें हाउ विल यू स्प्लिट दिस एंट्री कैसे करें अगर मैं हाफ हाफ करूं तो D to A to B 10 20 10 10 होगा और C to A to B 20 10 10 होगा या तो ये 1:3 बोल रही है तो D to A to B 25 15 होगा 25 15 होगा दोनों का नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरनली अपने को पता ही नहीं है कौन किसको कितना दे रहा है internally we don't know so we cannot split it only हमें पता ही नहीं है internally D A को कितना दे रहा है और B को कितना दे रहा है are you seeing that D गेन कर रहा है पक्का C गेन कर रहा है ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहा है लेकिन कौन किसको इंटरनली कितना दे रहा है ये दिया है वो दिया ही नहीं है how much is D is giving to A और how much is D is giving to B it may be 20,000 splitted as 1,000 and 19,000 या 20,000 splitted as 2,000 and 18,000 या 3 and 17 या 4 and 16 या 5 and 15 या 6 and 14 we don't know are you getting that so ये 20,000 कौन सा रेशियो में जा रहा है we do not know so जब ऐसा combined entry आए तो उसको combined ही posting कर देने का तो कैसा करने का D C to A to B है पहले बैलेंस एक मिनट लिख देता हूँ बाय बैलेंस BD
कितना है इनका? 80-20-30 है, रिजर्व तो नहीं है राइट? है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो बाय रिजर्व, क्या रेशियो में जाएगा? 10-6-4 exact. Okay, now see goodwill. How will you post the goodwill thing? It is DC to A to B. तो D में to A to B, तो D कैपिटल में to A and B कैपिटल, ऐसा लिख देगा। D कैपिटल में क्या लिखने का? to A and B कैपिटल, क्योंकि अपने को पता नहीं है कितना है, तो D कैपिटल गेट अ डेबिट ऑफ 20,000। to A to B इंडिविजुअली अपने को मालूम नहीं, it can be 5:1:3, it can be 1:4, it can be whatever it is, any ratio it can be, अपने को मालूम नहीं। so D में लिखने का to A and B, वैसे ही C में लिखने का to A and B, they get a debit of 20 each, and A में लिखने का by D and C cap, by D and C cap he'll get a credit of 10, and B में भी लिखने का by D and C, तो he'll get a credit of 20। क्यों ऐसा कंबाइंड मारा, समझा? पता नहीं है इंटरनली कौन किसको कितना दे रहा है। सर अज्यूम करके हाफ हाफ क्यों नहीं कर सकते? हाउ कैन यू अज्यूम हाफ ऑफ? जनरल अजम्पशन गुडविल क्या है? जो जितना गेन कर रहा है वो उतना सैक्रिफाइस। आपको मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ कि पहले जब 3 पार्टनर्स थे, लेट्स से दे वर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख अर्लियर, they were making a profit of 1 lakh earlier, so that was getting divided between A, B and C in the ratio of 5:3:2, so that was 50, 30 and 20, right? Now the same 1 lakh will get divided between A, C and D in the ratio of 2:1, which is 40, 40 and 20. So now this is what is goodwill. A को 50 मिल रहे थे, अब 40 मिल रहे, A रोएगा। B को 30 मिल रहे थे, कुछ भी नहीं मिल रहा है, B भी रोएगा। A रोएगा 10,000 के लिए, B रोएगा 30,000 के लिए। C को 20 मिल रहे थे, अब 40 मिल रहे, C हंसेगा, 20,000 फायदा हो रहा है उसका। और D को कुछ नहीं मिल रहा था, अभी 20 मिल रहा है, तो वो हंसा। तो C और D हंस रहे हैं, A और B रो रहे हैं, बराबर है। तो अभी C और D ने A और B को बोला आप रो मत, हम आपको चुप कराते हैं, हम आपको कुछ पैसा भी दे देते हैं। तो C और D ने मिलके 20 और 20 40,000 A और B को दे दिए। C और D ने मिलके 20 और 20 40,000 A और B को क्यों दिए, समझा? C को 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है, D को 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है, A और B को इतना कम मिल रहा है। तो अभी इंटरनली C ने A को कितना दिया या C ने B को कितना दिया पता नहीं है, D ने A को कितना दिया, D ने B को कितना दिया पता नहीं है। इक्वली दिया होना ऐसा जरूरी, यू कैन अज्यूम दैट इंटरनली कौन किसको कितना दे रहा है वी डोंट नो। वो अपने को अगर पता है कि ही टुक सो मच शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट, डी को इंडिविजुअल शेयर अगर दिया हुआ है, ही गॉट सो मच फ्रॉम ए या सो मच फ्रॉम बी, देन वी कैन कैलकुलेट। वो है ही नहीं अपने पास, स्प्लिट कर ही नहीं सकते। D to C to A। हाँ, D to A to B and C to A। तो वहाँ पे A भी नहीं लिख सकते डायरेक्ट, अपन A और B लिखते ना अलग अलग। हाँ, तो डायरेक्ट A to A and B ये सेम एंट्री नहीं कर सकते लास्ट में। लास्ट सम में भी कर सकते हो, लेकिन लास्ट सम में तो स्प्लिट पता है ना, उधर भी कर सकते हो। हाँ, बट जब स्प्लिट पता है तब स्प्लिट करो, बेटर है। यहाँ पे कर ही नहीं सकते, इसके लिए साथ में लिख दिया कंबाइंड मार। समझा कंबाइंड मारने का कंसेप्ट? इंडिविजुअली कौन किसको कितना दे रहा है अपने को पता नहीं, बाकी तो सब सेम है। गुडविल के बाद रिवाइल पे एनीवन हैज डन रिवाइल, टेल मी द आंसर फॉर रिवाइल। डेबिट्स में क्या है? बिल्डिंग प्लांट आईडी, अमाउंट भी बोल दो। बिल्डिंग 10,000 मिला, प्लांट 26,000 और आईडीडी आरडीडी लिखना है, डेटर नहीं लिखना है, क्यों? 27 प्रोविजन है। मिला, इन्वेस्टमेंट बाय हाँ कितना? 3,000 और टेक ओवर हुआ है, हाँ तो टू इन्वेस्टमेंट कौन लेके गया? बी 15 ओके। प्रॉफिट और प्रॉफिट लॉस टोटल 63,800 63,800 का टोटल टोटल है।
डिविजन अच्छा पूरा टोटल 63,800 पूरा टोटल है। लॉस कितना है? 60,800 और डिविजन 3400 हाँ 18 to 40 हाँ 12,160 बाय का इधर टू रिवैल 30,400 18 to 40 एंड 12,160। तो इधर आके रुक जाना है, पीसीआई करना है वापस। गुडविल क्या है दिमाग में सबके? गया गुडविल समझा कैसे करना है गुडविल? या अभी पीसीए करना है। पीसीए के लिए ना किसी का बेस दिया है क्या? अभी बेस दिया है? बेस हेलो डू वी नो द बेस कैपिटल? नो बट दे हैव गिवन अस व्हाट? दे हैव गिवन अस टोटल कैपिटल। यस हेलो 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 मिला क्या? टोटल कैपिटल कितना है आज के बाद? यहाँ तक हो गया सबका? इधर तक आ गए? हेलो टोटल कैपिटल कितना दिया हुआ है? नहीं समझ में आया टोटल कैपिटल? लास्ट समझा तो अभी देख लो। टोटल कैपिटल है 2 लाख। किसके बीच में होगा ये 2 लाख? A C D 2 2 1 80 and 40 राइट? 80 and 40,000 होना चाहिए। तो ये कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे टू बैलेंस CD 80 and 40 बराबर। Can you tell me what is D's total capital with goodwill? 60। ऐसा समझा? This was 40, 20 हड़पा हुआ है तो घर से लाया कितना हुआ बेचारा? 60। तो बाय बैंक 60। ये बाय बैंक का एंट्री जाएगा बैंक में 2D कैपिटल। ऐसा है। फिर अभी करो प्लीज नॉर्मल। सी का लोन है ना? 60 आया है 60,000 कैसे आया? हेलो 40 बेस था जो पीसीए से आया प्लस 20 गुडविल तो 60। लोन बताइए बी का। 22,760 ये जाएगा इधर। बीस लोन 22,760 ए सी एंड डी का 80 एंड 40 2 लाख आ रहा है। एसेट्स बोलते जा कितना है? अच्छा ये भी बाय बैंक ही आ रहा है? दोनों का बाय बैंक है? ए और सी क्या आ रहा है बाय बैंक? 7,400 10,400 78,160 corresponding effect इधर 2 A cap 10,400 and 2 C cap 78,160। ये बैलेंस कर लो कितना आ रहा है? 104,560। अब इसमें ओडी अलग से पे ऑफ करना है कि हो गया? ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव बहुत सारा पैसा ओडी सेट ऑफ करने के बाद भी। तो एक मिनट बैंक इज 104,560 लैंड 10,000 what else? Building 1,90,000 और
प्लांट 1 लाख 4,000. और Furniture फर्नीचर 43. 43, Inventories इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक 130. और Trade receivable ट्रेड रिसीवेबल आरडीडी है ना 1 कितना है ट्रेड रिसीवेबल पहले का बोलो हाँ मतलब पहले का 139 1,39,000 minus 27. 27,800 111,200. 1,11,200 और कुछ ये बाजू Long term debt लॉन्ग टर्म डेट मतलब उधार हाँ 3 lakh. और Trade payable 170. ट्रेड पेबल्स 1,70,000 692,760. 692,760 692,760 692,760 ये सब सेम टाइप के हैं और करने में टोटल अभी लास्ट सम ना बस नहीं भाई प्लीज या 23rd सम ट्राई आफ्टर दिस ऑन योर ओन 23rd पूरा ध्यान से करो ये वाला क्लियर है सबको गुडविल गया दिमाग में गुडविल हेलो गुडविल गया दिमाग में गया हेलो इंटरनल नहीं पता था तो DC to A to B हमेशा ऐसे ही होगा पूछते एक डेबिट है 2 क्रेडिट है तो कर सकते हो एक क्रेडिट 2 डेबिट कर सकते हो ये मल्टीपल डेबिट क्रेडिट सीधा कर लो 23rd सम राइट 23rd सम उड़ाओ लास्ट ये टाइप का 23rd सम करो फटाफट उसके बाद एक और ही सम करेंगे बस जब जाएंगे 23rd के बाद एक ही और सम करना है ये वाला सम फटाफट उड़ाओ नहीं होगा सर 8 30 तक उड़ा दो ये सब तो फिर एक ही सम बचेगा फिर वो करके जाओ लास्ट सम है सर नहीं नहीं सेकंड लास्ट इसके बाद एक 8:30 तक खत्म करो चलो हो गया ये हो गया बोलो सर मैं करो करो चलो गाइस प्लीज टाइम फटाफट उठाओ फिर एक ही समय डोंट वेस्ट टाइम वो जल्दी हो गया तो जल्दी जाओ करो 23rd सम करो PCA का नोट बनाना गुडविल का नोट बनाना टकाटक एकदम चलो ये न्यू एसी का रिमोट देना एसी का रिमोट देना अरे घर में वाला एक दिन भी हो कोई तो बोला पहला ही बस यही ये तीनों परसेंटेज पॉइंट में आएगा बहुत खराब है
सब पॉइंट्स खाता मैं मामला हाथ से इधर सी ए नहीं हो रहा है कंप्यूटर के पीछे ए टू सी अरे 8,800 सर जैसा गंदा रेशियो है सर वही ना सर सब पॉइंट करा सब जगह क्वेश्चन में गलती है बराबर है। सर अगर ऐसा करो 12th में आ गया तो कैसा करेंगे सर नीचे 18 कर दे ठीक है अभी कल पॉइंट में आ रहा है तो राउंड ऑफ कर दो कैलकुलेटर तो है बस बस ठीक है अभी कल एक दो पॉइंट का आंसर है तो राउंडेड ऑफ हाँ 9 है ना राउंड ऑफ कर देना कैलसी तो है आपके पास Next class I am going to take the most difficult sums of retirement, okay? Very, very important. ये गुडविल एंट्री क्या है
अबे तीन गेम करते हैं ना, एक सीढ़ी गेम करते हैं। ये यार अभी अभी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग वाला Goodwill आया. What is the entry for Goodwill? A C D to B. चालू करो पीछे रह जाएगा. इसका हो गया ऐसा एक्शन देखना है कृष्णा को गया. कृष्णा को ठीक नहीं था. स्ट्रीट प्ले खुद करेगा. हाँ सर बंदर बंदर सिर्फ जाना खुद एक्टिंग करता है. आदमी थोड़ी रखेगा नहीं नहीं सर किधर होता है स्ट्रीट प्ले? दो क्लास
कॉलेज नहीं होगा चल अभी तो कॉलेज में जाओगे इंटर में कॉलेज नहीं होगा बट हाँ पहला 2 महीना तो ठीक है, उसके बाद ही मेरा मैराथन चालू होता है। पहले 2 महीने में भी पढ़ाई करते रखना आप लोग, क्योंकि बाद में 1 to 8 का क्लास होता है। मॉर्निंग या इवनिंग जो बेस्ट है, आफ्टरनून लिया कर अराउंड 2 to 8 उसके बाद घर पे आओ, क्लास में जो करवाए वो करो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेल्फ स्टडी, वो जो 3 घंटा कॉलेज में जा रहे हो अपना सेल्फ स्टडी टाइम होता है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि क्लास में जो किया वो खत्म, क्योंकि इधर तो क्या है अभी एक टाइप का 3 सम हुआ है, उधर एक टाइप का 1 ही सम होगा, खत्म। नेक्स्ट टाइम हर एक सम अलग टाइप बताता ना, उधरते रहते प्रोफेसर बहुत इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से। ऑनलाइन तो बेस्ट ही है बट उतना ये नहीं है अपना, अभी मैच्योरिटी लेवल है ना, सेल्फ डिसिप्लिन उतना आया नहीं है। हो जाता है तो करो, लेकिन इतना आता नहीं है। ये भी डिफिकल्ट है, कोई सही है बोलने वाला। नहीं पढ़ी मैम जिधर पढ़ाते हैं उससे डबल बढ़ के पहले एक चैप्टर आगे चल रहा मैम से, एक चैप्टर आगे चल रहा एक्स्ट्रा क्या इको में भी सर आगे आगे यूट्यूब पे सर्च की अच्छा बढ़िया था। फिर सर्च सर कुछ समझ नहीं टिप्पणी करते हैं, पूरा आंसर ही चेंज होता है। मतलब राइट होता है। वो तो सर के मूड के ऊपर है। इको थोड़ा सब्जेक्टिव है ना, सोशल साइंस परफेक्ट आंसर है तो डिफिकल्ट इको में चाहिए कि तुमको रैशनल बिहेवियर होना चाहिए, आधे से ज्यादा पब्लिक ही रैशनल फिजिकल डेफिसिट मॉनिटरिंग बजट में आता है, ऊपर ऊपर करंट अकाउंट ऊपर ऊपर एमसीक्यू अलग है, इससे है। ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ऐसा ही है। इंडेक्स है क्या? इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छा ये है, मेरा क्या पैसा लीगल होता है चलो हो गया, हो रहा है गाली गाली। गुडविल मिला सबको, गुडविल हेलो। रिवैल का प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है? ऑडी 3
Reval loss is 43,900. Split गंदा है तो बोल दो ना 43,900 का split 19,500. हाँ 14,633. 14,633 9,756. and balance sheet tally 806,033. Four. हाँ वो 3 4 1 to 3 मिला क्या ये गुडविल आया सबको हेलो चेक गुडविल मिला अभी अरे सर रुको how many are still solving solve हाँ आईपीएल खेलेगा आईपीएल तो एंटरटेनमेंट है खेलो मत खेलो जो पैसा मिलता है बाकी सबसे तो गया ना वो लोग का इतना सा एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट और ब्रांड वैल्यू में कमाता है अभी विराट कोहली 100 करोड़ कमाता है साल का खाली ब्रांड वैल्यू तो उसको पूरा मैच का फीस प्राइस सब मिला के 10-15 करोड़ 20 करोड़ मार 100 करोड़ तो हर साल का मिलता है सर उससे ज्यादा भी मिलता है सर हम एक पोस्ट डालने का 12 करोड़ मिलता है सर हम एक पोस्ट डालने का 12 करोड़ विराट कोहली के कान में बोल रहा हूं रहेगा 100 करोड़ साल के ये हमारे पार्टी वाली चलो उसके बाद लास्ट सम बैलेंस शीट हेलो 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 लोन कितना है लोन 36,034 चेक ये लास्ट चलो सर बस में अभी लास्ट सम नंबर 20 20th sum है ना it's like 12th standard sum we have already done it earlier और उसमें मेन है लोन अकाउंट याद है ना लोन अकाउंट बनाना आशीनाथ लोन for CA it is important so solve the ledger लोन अकाउंट में बता रहा हूँ सेम सब है वापस CA में आता है और आ चुका है 12th में नहीं आया मैंने बोला था 12th में नहीं आएगा CA में आता है तो पहले नॉर्मल सम करो पूरा बैलेंस शीट बना लो लोन अकाउंट में बता रहा हूँ फिर बना के जाओ हाँ ये आ चुका है बेटा ये एग्जाम में आ चुका है लोन अकाउंट पहले लोन अकाउंट में बना रहा हूँ नॉर्मली पूरा सम खत्म करो टिल बैलेंस शीट पीली पर रिटायरमेंट हाँ हाँ रिवाल गुडविल नहीं है रिवाल बैंक कैपिटल एंड बैलेंस रिवाल बैंक कैपिटल एंड बैलेंस ओनली रिटायरमेंट बेसिक सम 10 मिनट्स में खत्म करो बाकी मैं 5 मिनट में लोन बना रहा हूँ फिर जाओ लोन अकाउंट में बना रहा हूँ ये लास्ट सम है बेटा थोड़ी स्पीड है how many are still solving the previous sum previous पे करो क्या बाकी बैलेंस शीट लोन वोन मिला और किसका बाकी है प्रीवियस सम हो गया बैलेंस शीट
चलो बाकी सबका हो गया, लोन मिला, बैलेंस शीट टैली हुआ, लास्ट सम हेलो चलो उड़ाओ, काशीनाथ दीनानाथ रघुनाथ लास्ट सम, हाँ गुरु चलो लास्ट सम क्विक, सृष्टि का हुआ लास्ट प्रीवियस सम चलो 10 minutes get back. अरे लोन अकाउंट पूरा बैलेंस शीट तक खत्म करो, उसके बाद ये भी हमने 12th में किया था, 12th में लास्ट सम लिया था। एनआर नहीं दिया तो हटा दो, जो रिटायर हुआ उसको सीधा डायरेक्टली देगा। हेलो चार दो छः जैसे कुछ सामान वामान गिरा था क्या? ये उसका जो चार्जर ही है अरे वो इसका बॉटल, इंक का बॉटल गिरा है क्या? 50% दिख रहा है? जो दिख रहा है? सॉरी अच्छा गिरा था क्या? तो उठा ही नहीं। Guys, please solve fast. ये लेट हो गया तो बोलना मत करो। चलो फटाफट टाइम पास मत करो। Guys, solve fast. तीन साल के बाद नहीं, 3 साल के ऊपर इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। रिटर्न सब हो गया, आधा हो गया, थोड़ा ही बाकी है। सर ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा
RSM, this is normal 12th standard problem. Ah, 20. Sum number 20. बराबर चलना और एक पर्टिकुलर समझ लो मुझे सारे चार दो छः एक सेकेंड पीसी है कैसे वो करना है ड्रोन से करना है देखो Passion Art is retired. वन 11050 पे ऑफ किया है बाकी लोन टू बैंक गुडविल मिला Did you get goodwill? Dinanath, Gurunath to Kashinath. D and DG2K. DG2K आया goodwill? Hello, hello, hello. मिला goodwill मिला? हो गया तेरा? तो ये साइड का बैलेंस बड़ा था ये साइड का किसने बोला ये का यही बढ़ा तो ये अभी भी यही बढ़ा ये नहीं निकाल दे मैं तो इसको कैसे वो बढ़ा कैसे बढ़ा इधर बढ़ने का ये आज से लगा ये 25 क्या बोला
नहीं भरा बंद कर फोन मध्ये के मला सीट लेंगे ठीक है ठीक है प्लीज 17350 सॉरी वो दूसरा बोल खुद ने बोला था बाकी है तो बता स्टॉक एक्टिंग आई वाज ट्राइंग टू बी जीनेगा बैंक में कुछ एंट्री आएगा ना बैंक का बैलेंस फाइनल वाला हो गया लेजर हो गया बैलेंस शीट Gurunath Dinanath to Kashinath. Kashinath is retiring. He is he is sacrificed. Others are giving. KG to sorry. DG to K. DG में 2K, K में by D by G. टोटल अमाउंट क्या आया? DG2 के कितना आया? DG2 के 2001 3000 DG2 के 213. Is that right? 12 के जैसा आप कर सकते हो डायरेक्टली. हो गया सबका बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हो रहा है टैली. सेम है. खाली 12th में तो ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आता नहीं है. इधर आता है इसके लिए मैंने 12th में करा. Did you get Kashinath's loan 30,000? 30 आ रहा है ना? Exact 30. 30.
अरे सर 32 आएगा इंटरेस्ट सर 33 अरे इंटरेस्ट मत करो अभी, लोन अकाउंट में बना रहा हूँ, नॉर्मल सब करो, इसमें मस्ती आ रहा है। अरे तो ये भी लोग हैं। काशीनाथ लोन 30 एक मिनट देखो, आपका गुडविल का एंट्री इज दीनानाथ गुरुनाथ टू काशीनाथ 213 21 और 3 मिला गुडविल। शेयर लेने गए, शेयर एक्चुअल शेयर ऐसा नहीं है, आपने तो शेयर लेने 12th के जैसा है ये, एक्चुअल ओवर माइनस क्या सीधा नॉर्मल है ना, नॉर्मल जीआरएसआर में शेयर रहता है, एक्चुअल जीआरएसआर में टोटल रहता है। एक्चुअल जीआरएसआर क्या है ना, उसमें टोटल गुडविल आएगा, इसमें तो शेयर आएगा ना सीधा। शेयर ऑफ गुडविल इज 3000 2183। शेयर ऑफ गुडविल लेने का सीधा 2:1 में शेयर, नॉट टोटल। टोटल कब लेते हो, जब ओवर माइनस अगर किया तो, समझा? वही है, अमाउंट आर 2183। दीनानाथ गुरुनाथ टू काशीनाथ 213। All of you got the difference? Normal GR share, actual GRSR total. Be alert. Normal GR share लेना है, actual GRSR total. सुनो ध्यान से सुनो सब लोग, एक मिनट। ओवर माइनस एनआर किया ना, तब कौन से मल्टीप्लाई करने का, टोटल से। सुना? ओवर माइनस एनआर करोगे ना, तब टोटल गुडविल लेने का। इधर क्या आपने किया, ओवर माइनस एनआर डायरेक्टली मिला है जीआर, तो दैट्स नॉर्मल जीआर। नॉर्मल जीआर में शेयर लेने का, टोटल नहीं, शेयर। सर तो शेयर कितना है आपका 3000 शेयर 3000 है, तो 2 1 और 3 6000 into 1/2 हाँ 6000 टोटल गुडविल कितना था, 6000। 6000 is the ratio of 2:1. 2183. 2183. Did you get good? कितने पे टैली हो रहा है? 88,950. आपस में किया ना, टैली अमाउंट वही आएगा। 88,950 टैली। Did you make goodwill 213? कंसेप्ट अच्छा हुआ किसी ने किया मिस्टेक, समझा ये वाला? कब लेते हो टोटल गुडविल, ओवर माइनस एनआर। जब नॉर्मल जीआर है तभी शेयर, एक्चुअल जीआर एसआर है तो टोटल। अच्छा हुआ किया मिस्टेक, मिस्टेक किया तो पेनल्टी लगा होगा। 12th का सुनता से 88,950 टैलीज ऑन 88,950। देखो बोलो रिवाइज प्रॉफिट आया, लॉस, रिवाइज लॉस कितना, डिवीजन सर टैली अमाउंट डिस्काउंट है, वो तो सेम ही आएगा, इंटरनली सेम है। लोन कटेगा, कैपिटल बढ़ेगा उतना 3000 से। क्या नहीं है उसका, अरे बट तो सेम लिखा है ना, इधर बोलो और लोन आया 30 और बैलेंस शीट 88,950 चेक मिला। डिफिकल्ट करने में इजी में टप्पी में आउट हो गया आप लोग। ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते खेलते नामी भी के सामने आ रहे।
केस लोड करके क्या हो गया? चलो बेसिक्स ऑफ दैट डुअल में किया भी था हो गया राजू 9 बज गया ये मिस्टेक क्या है वेट करो चलो 88 950 is it tallying now make this Kashinath's loan account next slide Kashinath's loan it take 5 minutes be quick draw Kashinath's loan चलो come on मिला लोन 30 मिला गुडविल अभी भी कंफ्यूजन है किसी को पक्का समझा शेयर की तरह टोटल जाएगा कितना मार्क्स कटेगा सबसे टैली भी सेम होगा 10 मार्क्स का है तो फिर तेरा बैलेंस अब लोन भी गलत हो तो आगे ये लोन भी गलत होगा इस सब में वेटेज इसका है लोन अकाउंट तो क्या 2-3 मार्क्स मिलेगा 4-5 गया हाँ 2 से 3 मार्क्स आएगा मिलेगा 3-4 मार्क्स वो बैंक उठाना पड़ेगा चलो जी लास्ट लोन अकाउंट मिला गया और अरे सर मॉर्निंग क्यों क्लियर है लास्ट पार्ट लोन अकाउंट दिस वाज आस्क्ड फॉर 5 months मतलब विद सम 10 मार्क के समय 5 मार्क इसका था ओ माय गॉड देखो उधर क्या दिया है of the amount due to Kashinath 11050 is to be paid and the balance is to be transferred to loan which is paid in 3 equal annual installments तो आपको लोन कितना मिला 30 तो जहां वो खत्म हुआ है ना बैलेंस शीट तो उधर ये लोन अकाउंट शुरू हो रहा है ओके तो बैलेंस शीट का डेट क्या था आई थिंक आपका 1 जुलाई 2009 तो ये वहां पे शुरू होगा ये किसके बुक में है लोन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बिजनेस बिजनेस का ये लायबिलिटी है ना तो बिजनेस इज रीपेइंग दिस Kashinath's loan this loan over 3 years so what will be the annual installment 10,000 होगा समझा सिंपल 30,000 divided by 3 that is 10,000 but along with interest का फंडा बहुत सिंपल है बनिया लॉजिक कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा कितने टाइम के लिए कितना पैसा वापरा बराबर 3 इंस्टॉलमेंट है शुरुआत हो रही है 1709 से ये पार्ट समझा जहां बैलेंस शीट खत्म हो रहा है वहां पे लोन अकाउंट स्टार्ट हो रहा है तो पहला इंस्टॉलमेंट कब ड्यू होगा 30th जून 2010 दूसरा 30th जून 2011 तीसरा 30th जून 2012 तो पहला साल बिजनेस ने कितना पैसा वापरा 30,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा 30,000 पे 5% फॉर 12 महीना विच इज 1500 वैसे तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है इंटरेस्ट बिजनेस ने पे किया तो इंटरेस्ट टू बैंक राइट बट ये बिजनेस 2 पार्ट्स में करता है अगर याद होगा मैंने बोला था हमेशा पहले पेएबल फिर पे तो क्या करोगे इंटरेस्ट टू लोन दैट इज पेएबल एंड देन लोन टू बैंक सो इंटरेस्ट टू लोन सो लोन में आएगा बाय इंटरेस्ट कितना 1500 दिस विल बी ऑन 30th जून 10 12 महीने बाद इंटरेस्ट टू लोन का मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा लोन लायबिलिटी बढ़ा पैसा देना बाकी है अब चुकाओगे तो लोन टू बैंक इंटरेस्ट चुकाने की एंट्री लोन टू बैंक है और लोन भी चुकाने की एंट्री क्या है लोन टू बैंक तो यू कैन मर्ज इट लोन में टू बैंक कितना टोटल चुकाना है 10,000 प्लस 1500 दैट इज 11,500 डेट यही रहने वाला है 30th जून 11 मिला एंड फिर कर देने का टू बैलेंस 30th जून 10 और फिर कर देने का टू बैलेंस CD ये कितना आ रहा है आपका बैलेंस आई थिंक 20,000 आ रहा है बैलेंस मिला 20 प्लीज चेक
Buy balance BD, this is 20,000 on 1,710. 1,710. यहाँ का क्लोजिंग बना, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग 30 में से 10 गया, बचा 20. सेकेंड ईयर सेम साइकिल रिपीट करनी है, बट इस साल बिजनेस ने कितना पैसा यूज किया, तो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे आएगा. दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2. कितना टाइम कितना पैसा वापरा, तो दिस टाइम इट इज 20,000. ऑल ऑफ यू गॉट इट, समझा. सेम एंट्री फॉर इंटरेस्ट, क्या होगा, इंटरेस्ट टू लोन एंड लोन टू बैंक. Interest to loan, so loan may buy interest. This time it is gonna be 1,000. 30th June 11, and to bank you will pay off. How much you will repay now? Loan to bank. 11,000. How come 11 did you get it? 10 of principal plus 1 of interest. So ये 10 और ये 1 चुका दिया. दोनों की एंट्री सेम है, इसके लिए क्लब किया, समझा. This is 30th June 11, and again 30th June 11 you get the balance. What would be your balance? 10,000. 10,000 आपका बैलेंस हो गया. ये बन के आएगा इधर बाय बैलेंस BD 10,000 on 1,711. The last year is 1,711. How much money are we using in the last year now? 10,000. So interest for year 3 will be taken on what? 10,000 pay 5% for 12 months. That is how much? Again the entry is same, interest to loan. So loan में buy interest 500. डेट क्या होगा, 30th June 12. एंड ये पे ऑफ हो जाएगा कितना, लोन टू बैंक कितना, 10,000 plus 500, that is 10,000. इंटरेस्ट जोड़ते जाओ और लोन पे करते जाओ. Got it? अभी एक चीज सुनो ध्यान से, ये तो एनुअल था. सपोज इट वाज 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो 5-5 हजार होंगे. तो यही एंट्री करनी है, लेकिन 2 बार करनी है, फिर बैलेंस करने का, समझा. पहला इंटरेस्ट 30 पे, दूसरा इंटरेस्ट 25 पे, फिर बैलेंस, फिर 20 पे, फिर 15 पे, फिर बैलेंस, फिर 10 पे, फिर 5 पे, फिर बैलेंस. हाँ, 6 महीना वाला प्रोसेस. Okay, stop. Nothing for homework. Next class.